Hi children, welcome to VIN Sushmita here. Today we are going to learn Hindi part 7 Garam Jamun. What we are going to learn here? A lesson about Garam Jamun means hot jamun. Okay, here कुछ समय पहल की बात है. कुछ समय पहल की बात है means so many days before. एक गांव में शिबू नाम का एक आदमी रहता था. एक गांव में शिबू नाम का एक आदमी रहता था means in a village there was a person called Shibu who was living there. वह बहुत कविताएं लिखता है. वह बहुत कविताएं लिखता है means he used to write so many poems. सारे गांव के लोग उन्हें सुनकर दांतों ताले अंगुली दबा देते. सारे गांव के लोग उन्हें सुनकर दांतों ताले अंगुली दबा देते means by hearing all this the people who were living there they were keeping their fingers on their mouths. यहाँ तक कि विद्वान मास्टर जी भी उसका लोहा मानते थे. यहाँ तक कि विद्वान मास्टर जी भी उसका लोहा मानते थे means there was a master who was listening to his words also. शिबू ने गाने में राजा के राज गायक को भी हरकर विजय प्राप्त की थी. शिबू ने गाने में राजा के राज गायक को भी हराकर विजय प्राप्त की थी. He was singing also good. He once what he did, he sang to a person who were a king's court, a person who is in a king court. He also he defeated him and he won the prize. Okay. पूरे गांव में उस जैसा विद्वान कोई दूसरा ना था. पूरे गांव में उस जैसा विद्वान कोई दूसरा ना था. He was so special and he was very vidwan means he was a pandit, he knows everything. No one was there in that village apart from him. राजा को दरबार में उसका बड़ा आदर होता था. राजा के दरबार में उसका बड़ा आदर होता था. He was in the king's palace, he was getting so much of respect. धीरे धीरे उस अपनी विद्वता का बड़ा घमंड हो गया. धीरे धीरे उस अपनी विद्वता का बड़ा घमंड हो गया means by seeing itself so many days after it's become his knowledge was increasing. He came to know by all the persons. He was knowing to all the person. वह किसी से सीधे मुंह से बात भी नहीं करता था. वह किसी से सीधे मुंह से बात भी नहीं करता था. Now he was not talking towards a person by seeing their face. He was always bending his neck and he was starting talking. Okay. एक दिन वह सवेरे सैर के लिए निकला. एक दिन वह सवेरे सैर के लिए निकला means one day morning he went for walking. मौसम की पहले बरसात होने वाली थी. मौसम की पहले बरसात होने वाली थी means in that time they were a rainy season, some crops were growing. काले बादले ने गिरने शुरू ही किया था. काले बादलों ने गिरना शुरू ही किया था. There were fully black clouds and it was raining started. शिबू अपने घमंड में चला जा रहा था. शिबू अपने घमंड में चला जा रहा था. He was moving. सड़क किनारे जामुनों के पेड़ काले काले जामुनों से भरे पेड़ थे. सड़क किनारे जामुनों के पेड़ काले काले जामुनों से भरे पेड़ थे means when he was moving there was a road on the
side of its road there was a tree called jamun, and there were so many jamuns. Here and there they were filled with jamuns. Okay. रसीले जामुनों को देखकर शिबू के मुंह में पानी भर आया. रसीले जामुनों को देखकर शिबू के मुंह में पानी भर गया. Means when he sees the jamun, for him really it was nice. No, he started mouth watering. He wants to eat that jamuns. उसने सोचा पेट पर लागो खाले जामुन बड़े ही स्वादिष्ट होंगे. उसने सोचा पेड़ पर लगे खाले जामुन बड़े ही स्वादिष्ट होंगे. He thinks that when in a tree itself it has become fruit, means that fruit will be very tasty. एक बड़े से जामुनों को पेड़ के नीचे जाकर उसने आंखें उठाई और ऊपर देखा तो कुछ बच्चे पेड़ पर चढ़कर जामुनों खाते दिखाई दिए. एक बड़े से जामुन के पेड़ के नीचे जाकर उसने आंखें उठाई और ऊपर देखा तो कुछ बच्चे पेड़ पर चढ़कर जामुनों खाते दिखाए दिए. Means what he did, he went to a big tree and he sees the upside. There what he saw some children who were eating that jamuns. Okay. शिबू ने नीचे से आवाज़ दी, प्यारे साथियों मेरे लिए भी थोड़े से जामुन गिरा दो. शिबू ने नीचे से आवाज़ दी, प्यारे साथियों मेरे लिए भी थोड़े से जामुन गिरा दो. Means by he will say in a loud voice that, see children, see friends, for me also you throw some fruits to me also. उनमें गोलू नाम का एक बच्चा था. Means in that children group there was a boy called Golu. Okay. वह बड़ा शरारती और चंचल था. He was very शरारत और चंचल, means he was very roaming, means he was not in a constant mind. Every time he will be not a very silent kid. Okay. वह ऊपर से ही बोला, भैया शिबू यह तो बताओ कि कैसे जामुन चाहिए, गरम या ठंडे. वह ऊपर से ही बोला, भैया शिबू यह तो बताओ कि कैसे जामुन चाहिए, गरम या ठंडा. From the top and from the tree itself, on the tree itself he will say, Bhaiya Shibu, means brother Shibu, what type of fruits you want, cold one or hot one. शिबू गुस्से से बोला, भाला जामुन भी कहीं गरम होते हैं. शिबू गुस्सा से बोला, भाला जामुन भी कहीं गरम होते हैं. Means he from very angry, he will ask, what you are saying that anybody will see that wherever the jamun will be in hot. चलो मुझसे मजाक ना करो. चलो मुझसे मजाक ना करो. He will say, go, don't do any funny things on me. Okay. मेरे लिए थोड़े से जामुन तोड़ा दे. मेरे लिए थोड़े से जामुन तोड़ दे. He will say, for me also you give some fruits. गोलू बोला, भाई आप तो इतने बड़े विद्वान हैं, क्या यह भी नहीं जानते कि जामुन 2 प्रकार के होते हैं. मेरे लिए गोलू बोला, भाई आप तो इतना बड़े विद्वान हैं, क्या यह भी नहीं जानते कि जामुन 2 प्रकार के होते हैं. फॉर हिम ही विल से, भैया ब्रदर you are so scholar and you are so intelligent, but you don't know that jamun will be in 2 types.
गरम और ठंडा. What he will say? It will be in two types. One is hot and one is cold. पहले आप बताइए कि आपको कैसे जामुन चाहिए. पहले आप बताइए कि आपको कैसे जामुन चाहिए. Means he will say, firstly you say first what type of jamuns you want. बाला, इसे जाने बिना आपको कैसे जामुन दूंगी. बाला, इसे जाने बिना आपको कैसे जामुन दूंगा. He will ask. You want to say no. Without saying this, how can I give you the fruits? शीबू की समझ में नहीं आया कि जामुन भला गरम कैसा होगे. शीबू की समझ में नहीं आया कि जामुन भला गरम कैसे होगे. For him, it didn't identify that how the jamun will get hot. He will be thinking. फिर भी वह उस रहस्य का जानना चाहिए था. फिर भी वह उस रहस्य का जानना चाहता था. For him, he thinks, but he don't know. No, so that what he thinks, he wants to know that thing, how it is secret, how it becomes hot and cold. इसलिए बोला, अरे गोलू, तुम मुझे गरम जामुन ही खिलाओ, ठंडा तो मैंने बहुत खाए हैं. इसलिए बोला, अरे गोलू, तुम मुझे गरम जामुन ही खिलाओ, ठंडा तो मैंने बहुत खाए हैं. For that he wants to see, he want to know the secret, no? So what he says, okay Golu, give me hottest one. I have eaten so many cold ones. Okay. गोलू ने शीबू की यह बात सुनकर जामुन की एक डाली को जोर से हिलाया. गोलू ने शीबू की यह बात सुनकर जामुन की एक डाली को जोर से हिलाया. Means by listening to his words, what he says, he throws some fruits. पके ढेर सारे जामुन नीचे धरती पर गिरे गए. पके ढेर सारे जामुन नीचे धरती पर गिरे गए. Means he will throw no so many fruits came to the down of the earth. Okay. जामुन धूल से सन गए. जामुन धूल से सन गए. Means the jamun becomes very dusty. It becomes very dirty. शीबू जामुन उठाकर उन पर लगी धूल फेंका कर उनको खाने लगा. जामुन धूल से सन गए. शीबू जामुन उठाकर उन पर लगी धूल फेंका कर उनको खाने लगा. Means what he did, he took some fruits and he cleaned the dust and he started eating. गोलू ने यह देखकर नन्हे गोलू ने पूछा, क्या भैया जामुन खूब गरम है ना. यह देखकर न्याय ने गोलू ने पूछा, क्यों भैया जामुन खूब गरम है ना. By saying that he says to his brother that yeah, you see that jamuns are very hot, no. शीबू ने उत्तर दिया, कहा, मैंने तो साधारण ठंडा जामुन ही खा रहा हूँ. शीबू ने उत्तर दिया, कहा, मैंने तो साधारण ठंडा जामुन ही खा रहा हूँ. For that शीबू will say, no, I am normally eating a cold jamun itself. नहीं, गोलू ने चौंका कर पूछा, क्या कहा, ठंडा है. For this नन्हे गोलू ने चौंका कर पूछा, क्या कहा, ठंडा है. For him he will say, what, it is very cold. तो फिर आप इन्हें फूंका कर क्यों खा रहे हैं. तो फिर आप इन्हें फूंक कर क्यों खा रहे हैं. Means for him he will say, then why you were cleaning and eating. इस तरह तो गरम चीज़ें ही खाई जाती हैं. इस तरह तो गरम चीज़ें ही खाई जाती है. But in this tree it will get only hot one.
नन्हे गोली की बात सुनकर शीबू को गरम जामुन का रहस्य की बात समझा में आया। नन्हे गोलू की बात सुनकर शीबू को गरम जामुन का रहस्य की बात समझ में आया। मीन्स by listening to him, for him how he got that how it become a hot। और वह बड़ा शामिदा हुआ और वह बहुत शर्मिंद हुआ। मीन्स for him he felt very sad and he felt very means he was not satisfied। okay, इतना महान विद्वान पुरुष जरा सी बात में छोटे से बच्चे से हार गया था। इतना महान विद्वान पुरुष जरा सी बात में छोटे से बच्चे से हार गया था। See, by this he was famous scholar, no children. He felt very sad that in front of a small boy I lost। okay, गोलू भाई कैसे बड़ी बात कहा गया, गोलू भाई कैसे बड़ी बात कहा गया। He was thinking Golu brother said a nice words। okay, now we'll see a lesson once again। okay, कुछ समय पहले की बात है, एक गांव में शीबू नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत कविताएं लिखता था। सारे गांव के लोग उन्हें सुनकर दांतों थाले अंगुली दबा देता। यहाँ तक कि विद्वान मास्टर जी भी उसका लोह मानते थे। शीबू ने गाने में राजा के राजगायक को भी हराकर विजय प्राप्त की थी। पूरे गांव में उस जैसा विद्वान कोई दूसरा ना था। राजा के दरबार में उसका बड़ा आदर होता था। धीरे धीरे उस अपनी विद्वता का बड़ा घमंड हो गया। वह किसी से सीधे मुंह से बात भी नहीं करता था। एक दिन वह सवेरे सैर के लिए निकला। मौसमी की पहले बरसात होने वाली थी। काले बादलों ने गिरने शुरू ही किया था। शीबू अपने घमंड में चला जा रहा था। सड़क किनारे जामुनों के पेड़ खाले खाले जामुनों से भरे पेड़ थे। रसीले जामुनों को देखकर शीबू के मुंह में पानी भर गया। उसने सोचा पेड़ पर लगे काले काले जामुन बड़े ही स्वादिष्ट होगी। एक बड़े से जामुन के पेड़ के नीचे जाकर उसने आंखें उठाई और ऊपर देखा तो कुछ बच्चे पेड़ पर चढ़कर जामुन खाते दिखाई गए। शीबू ने नीचे से आवाज़ दी, प्यारे साथियों, मेरे लिए भी थोड़े से जामुन गिरा दो। उनमें गोलू नाम का एक बच्चा था। वह बड़ा शरारती और चंचल था। वह ऊपर से ही बोला, भैया शीबू, यह तो बताओ कि कैसे जामुन चाहिए, गरम या ठंडे। शीबू गुस्से से बोला, भला जामुन भी कहीं गरम होते हैं। चलो मुझे से सजा न करो, मेरे लिए थोड़े से जामुन तोड़ दे। गोलू बोला, भाई आप तो इतने बड़ा विद्वान हैं, क्या यह भी नहीं जानते कि जामुन दो प्रकार के होते हैं, गरम और ठंडे। पहले आप बताइए कि आपको कैसे जामुन चाहिए। बाला, इसे जाने बिना आपको कैसे जामुन दूंगी। शीबू की समझने नहीं आया कि जामुन भला गरम कैसे होंगे। फिर भी वह उस रहस्य का जानने चाहता था, इसलिए बोला, अरे गोलू, तुम्हें मुझे गरम जामुन ही खिलाओ, ठंडा तो मैंने बहुत खाए हैं। गोलू ने शीबू की यह बात सुनकर जामुन की एक डाली को जोर से हिलाया। फेंके ढेर सारे जामुन नीचे धरती पर गिरे गए। धरती पर धूल ही धूल थी।
जामुन धूल से सान गए। शिबू जामुन उठकर उन पर लगी, धूल फेंक कर उनको खाने लगे। यह देखकर नन्हे गोलू ने पूछा, क्यों भैया, जामुन खूब गर्म है ना? शिबू ने उत्तर दिया, कहा, मैंने तो साधारण ठंडा जामुन ही खा रहा हूँ। नन्हे गोलू ने चौंक कर पूछा, क्या कहा, ठंडा है? तो फिर आप इन्हें फेंक कर क्यों खा रहा है? इस तरह तो गर्म चीज़ों ही कही जाती है। नन्हे गोलू की बात सुनकर शिबू को गरम जामुन का रहस्य की बात समझा में आया और वह बड़ा शर्मिंदा हुआ। इतना महान विद्वान पुरुष जरा सी बात में छोटे से बच्चे से डर गया था। गोलू भाई कैसे बड़ी बात कहा गए।